So hey friends, today we'll discuss about the gas leakages cases from our South India and the different states of our country. So today we'll discuss about the ammonia gas leak in Tamil Nadu. Death tolls rises to 7. Here the death tolls rise to 7, all of them women from Odisha. Done? Okay. Tamil Nadu Health Department closely monitoring situation. Officials, Odisha Labour Minister says, efforts are being made to bring back the mortal remains of the victims. Total 77 affected in the incident. Actually, this is the information where the ammonia gas has been leaked, but the labor were employed here are belong to the Odisha. Okay, so don't need to be confused over here. Here guys, we'll discuss about the migration too. Migration. What is the migration? Done. So I have been already talk about in my previous lecture series that what is the term migration means over here. Suppose someone is the Ketki and Sobha. Okay, these are two friends. So these both of the friends want to get education. So they are migrating from Odisha to Tamil Nadu. Then why they are migrating? Because they want to get the education. Okay, so with respect of to get the education, to get the job, to get the better opportunity from one place to another place. These could be also with respect of our natural calamities like the flood, earthquake, or another conditions like that. So migration is the term which means someone is migrating from one place to another place with respect of due to some natural forces, and apart from some natural forces there are the reasons are belong to the migration like the anthropogenic activities too. Here the anthropogenic activity in the sense मानव के द्वारा या ह्यूमन के रिगार्डिंग जो कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं वो है एंथ्रोपोगेनिक या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़. वाइल दी नेचुरल कैलेमिटीज़ में जो प्रकृति जो नेचर के थ्रू आए गए नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ बात की गई है. सो आई एम जस्ट होपिंग सो एवरीवन नाउ यू हैव बीन very crystal clear about the term the migration. Okay, let's move further about some key highlights. Let's read about the articles. The death tolls in the ammonia gas leak. Reason क्या है? Reason is over here ammonia gas leak. Okay, migrated peoples कहाँ से थी? labor belong to Odisha and we are talking about the Tamil Nadu. Okay, so reason ammonia gas leak हुआ. Done. माइग्रेटेड जो हमारी कौन थी जो लेबर आई थी हमारी, ये कहाँ से थी? ओडिशा. ठीक है, जो कि जगन्नाथपुरी जहाँ से जगन्नाथ रथ यात्रा ऑल्सो बिलोंग करती उसी स्टेट से. ओडिशा कैपिटल इज़ दी भुवनेश्वर. ओके, सो यू विल टेल मी अबाउट दी सीएम ऑफ दी ओडिशा. ओके, सो कितने नंबर ऑफ पीपल की यहाँ पे डेथ हुई है? कितने नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे डेड हुए हैं? सो दीज आर 10. 10 इज़ नॉट एग्जैक्ट नंबर. सो हम थोड़ा एवरेज लेके चलते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ है कि इंजर्ड के अलावा जो डेथ टोल्स हैं वो थोड़ी मोर और लेस ज़्यादा कम ही रहेंगी. सो दी डेथ टोल्स इन दी अमोनिया गैस लीक एक्सीडेंट एट अ सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट. एक्चुअली जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट थी. ठीक है, लोकेशन जहाँ पे सी के प्रोडक्ट्स का यूज़ करके वहाँ पे फूड प्रोड्यूस किया जा रहा था. ठीक है, इन तमिलनाडुज़ थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के एक थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, सो लोकेशन तमिलनाडु. कहाँ से लेबर आई थी? माइग्रेशन हमें समझ में आ गया क्या होता है. ठीक है, उड़ीसा से लेबर आई थी. डेथ टोल्स कितनी है? रीज़न क्या है? अमोनिया गैस का लीक होना. क्योंकि अमोनिया इज़ दी कलरलेस गैस एंड पंजेंट गैस टू. याद रखना है, ये कलरलेस होती है और पंजेंट होती है. ठीक है, ऑल दी विक्टिम्स वर विमेन. रीज़न यहाँ पे पता है आपको, सारे जितने भी विक्टिम्स हैं वो थी विमेंस. समझ में आ रही हैं? फ्रॉम ओडिशा. कहाँ से? ओडिशा से. अकॉर्डिंग टू अ मीडिया बुलेटिन इशूड बाय द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट. यू विल गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज़ आवर करंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, you will please let me know in the comment section. Okay, so two discharged.
According to the bulletin, what does the bulletin say? That a total of 77 individuals were reported. कितने individuals थे? 77. Wait a moment. Okay. So कितने थे? 77 individuals were reported as affected in the incident, and 2 of them dead on Sunday. तो 77 में से कितने डेड हो गए? 2. तो अराउंड 75 अभी रिमेनिंग. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी बुलेटिन्स डेटा. ओके, ऑन संडे एज ऑफ 7 AM ऑन मंडे 3 एडिशनल फर्टिलिटीज़ वर रिपोर्टेड. फिर जैसे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफ द मंडे यहाँ पे कितनी और फर्टिलिटीज़ यहाँ पे रिपोर्ट की गई? 5 और, सॉरी 3 more people. ओके, 3 more people. Then 2 more persons dead. 2 individuals were discharged after the treatment. फिर 2 individual का यहाँ पे ट्रीटमेंट चला और उस आफ्टर द ट्रीटमेंट उसको डिस्चार्ज कर दिया. The deceased were identified as शिवानी जुमानी जुआंग, गीता जुआंगा and Purnima Juanga and the Champavati Juanga and the Parvati Juanga, while the identity of one deceased person remains unknown. और एक की जो है जो अभी आइडेंटिटी है वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रही है. योर गाइस माइंड ओवर ईयर दी ओडिशा में सबसे ज़्यादा हमारी ट्राइबल पीपल्स होते हैं. अराउंड 75 ट्राइबल पीपल्स हमारे हैं, है ना. ST कम्युनिटीज़ जो है, शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं. यूर माइंड द वर्ड जुआंगा. जुआंगा, डोंट यू थिंक कि सेम कम्युनिटी यहाँ पे है? मतलब एक ग्रुप ऑफ द पीपल, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का यहाँ पे कहाँ से माइग्रेट किया था? ओडिशा से. और वो एक द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द लेबरर्स आर दीज ऑल वर द वीमेंस. ओके. सो वही रीज़न क्या था? अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए फॉर द सर्चिंग ऑफ द वर्क दे माइग्रेटेड फ्रॉम ओडिशा टू तमिलनाडु. डन. सो व्हाट डज ऑफिशियल सेड? ऑफिशियल सेड 3 persons डेड एट वेल्स हॉस्पिटल. 3 की डेथ हो जाती है वेल्स हॉस्पिटल में, वाइल द 1 डेथ ईच वॉज रिपोर्टेड एट द वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल एंड द राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल. इट इज़ द RGGH, and 2 deaths were reported at government Stanley Medical College Hospital. So here are some mentioned name about the Rajiv Gandhi, Stanley Medical College and the Wells Hospital. So okay, the health department said 68 individuals. How many? 68 individuals were currently receiving treatment at various hospital. तो different हॉस्पिटल्स हैं. 68 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं. इस अमोनिया गैस लीकेज वाली जो इंडस्ट्री में, जो कि सी फूड इंडस्ट्री थी, वहाँ पे जो वर्क चल रहा था उसकी वजह से, लीक होने की वजह से जो इंजरीज़ हुई हैं, जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो 68 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अभी इनको ट्रीटमेंट मिल रहा है. मतलब इनका जो ट्रीटमेंट है वो ऑनगोइंग है. सो ओडिशाज लेबर मिनिस्टर गणेश राम सिंक्वाटिया on Monday said efforts are being made to bring back the mortal remains of the women who died in the gas leak incident. तो अभी यहाँ के जो लेबर मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं ओडिशा के कि अभी जितने भी मॉर्टल्स हैं, सॉरी जो मॉर्टल रिमेंस हैं, जितने भी डिसीज्ड वीमेन हैं जिनकी डेथ हुई है, उनके जो मॉर्टल रिमेंस है जो फाइनल जो फनरल की प्रोसेस के लिए उनकी फैमिली को हैंड ओवर किए जाने हैं, उनको अभी लाने की प्रोसेस चल रही है ना. सो एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, दुख को व्यक्त करते हुए ओवर दी डेथ्स, ओडिशा CM मोहन चरण मांझी, ये भी मैंने पूछा ही था, मोहन चरण मांझी हु इज़ CM ऑफ ओडिशा and announced an ex gratia of the 4 lakh from the CM's relief fund. CM का स्टेट लेवल पे CM रिलीफ फंड होगा, वाइल द सेंट्रल लेवल पे PM रिलीफ फंड होगा. एक्स ग्रेशिया, एवरीवन, एक्स ग्रेशिया इज़ द टर्म जिसके थ्रू कुछ कंपेंसेशन किया जाता है, कुछ कंपेंसेट किया जाता है, कंपेंसेट लिख रही हूँ मैं, कंपेंसेशन दिया जाता है जो भी डिजीज़ रहता है या फिर जो भी अफेक्टेड रहता है, किसी भी कैलेमिटी या कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे इस तरह की फर्टिलिटीज़ या इस तरह की डेडलीस्ट इंसिडेंट हुई होती है. ठीक है. सो हु इज़ ऑफ ओडिशा CM मोहन चरण मांझी. आई एम रिपीटिंग, मोहन चरण मांझी. ठीक है. और यहाँ के लेबर मिनिस्टर ने यह पूरा डेटा दिया, क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री, क्योंकि ओडिशा की लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू कुछ वहाँ पे कुछ वैकेंसीज रही होंगी. ठीक है. फिर तमिलनाडु के, क्योंकि आपके स्टेट की कोई भी पॉपुलेशन अगर बाहर जा रही है या स्टेट टू स्टेट, क्योंकि हमें पता है अंडर आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें डिफरेंट आर्टिकल जो उसके सब आर्टिकल्स हैं 19 के अंडर में, वो हमें फ्रीडम देता है कि हम थ्रू आउट द कंट्री कहीं भी आ जा सकते हैं, थ्रू आउट द स्टेट आ जा सकते हैं, इंटर स्टेट हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं फॉर द सर्चिंग ऑफ द फूड, एजुकेशन. ठीक है. और कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ जो मैंने बताई हैं, हमारी फ्लड हो गया, हमारा फेमाइन कुछ कंडीशन हो गई, तो एक जगह से दूसरे के इंसान अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए माइग्रेट करता है. ठीक है. सो एक्स ग्रेशिया कितना देना है? 4 लाख. कितना? हाउ मेनी lakh? 4 lakh. ओके. फ्रॉम दी CM रिलीफ फंड.
से जाने वाला है. For the next of the kin of each diseased worker. Kin, next of kin in the sense here the term next, sorry, let me erase it out. Yeah. So the नेक्स्ट ऑफ किन इन द सेंस जो रिलेटिव्स हैं डिजीज्ड वीमेन के, उनकी फैमिली को कितने दिए जाने हैं 4 लाख एज अ एक्स ग्रेशिया. कहाँ से, कौन से फंड से? सीएम फंड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी पीएम फंड. ओके, इट वाज नॉट फ्रॉम आवर नेशनल लेवल कैलेमिटी फ्रॉम विच दी आर पीएम शुड गिव दिस काइंड ऑफ द एक्स ग्रेशिया. नो. So next, what does the article say? The Odisha government is in constant touch with the Tamil Nadu administration to ensure treatment and the other assistance for the affected workers. तो जितनी भी डिजीज वीमेन हुई या अफेक्टेड जो भी वर्कर्स हुए, इनके रिगार्डिंग बोला ना मैंने, ओडिशा से लेबर्स थी. सो ओडिशा की गवर्नमेंट किससे कांस्टेंट टच में है? तमिलनाडु के एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट, बात एक ही है, ताकि इनको प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, बेटर क्वालिटी का ट्रीटमेंट इनको प्रोवाइड किया जाए. कौन? जो कि अफेक्टेड वर्कर्स हैं. अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द 77 वर्कर्स, 29 फ्रॉम दी ओडिशा एंड 20 फ्रॉम आसाम. 29 ओडिशा से थे. ये डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट. You can guys easily mark it out in our men's answer writing with respect of any kind of the calamity. You can insist these kind of the data and facts and figure in our upcoming men's answer writing series from whichever platform you are just going through, no matter about that. But these are the articles are very important with respect of our upcoming examination, where the labor ministers and the women workforce and the migration and ex gratia terms are could be asked. So you should be you should be aware about very well aware about like this. Okay, so कितना क्या 20 कहाँ से थे? 20 हमारे आसाम से थे. डन. देन 8 फ्रॉम झारखंड. 8 कहाँ से थे? राइटिंग इन शॉर्ट झारखंड. डन. और 3 हमारे केरला. 3 फ्रॉम आर केरला. ठीक है, केरला से रहे हैं. वाइल हमारा जो सॉरी, एक मिनट, व्हाट हैपेंड. हाँ, ठीक है. सो डिफरेंट जगह से कहाँ यहाँ पे हमारे वर्कर्स रहे थे. ओके, सो दी हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ बीन क्लोजली मॉनिटरिंग दी सिचुएशंस एंड ensuring दी अवेलेबिलिटी ऑफ दी अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर. ठीक है, एक अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाने की कोशिश की जा रही है फॉर ऑल द अफेक्टेड पर्सनस. ऑफिशियल सेड इट इज़ कोऑर्डिनेटिंग विद द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ एंड द हेल्थ केयर institutions to facilitate timely treatment, surveillance and response activities they aided. So अभी आपसे पूछा कि कुछ key measures बताइए. Give us the some key measures. So what could be the key measures? Key measures could be like proper treatment. Okay, proper treatment. The worker should be under the surveillance. Okay, and ex gratia, are ex gratia. So these are terminologies. And also guys, you can mention about the article 19. ठीक है, article 19 and government's contribution. Done. Government's contribution. And also you can mention about the MG Narega. If I say so, MG Narega, wait a moment, earlier with respect of our earlier scheme MG Narega, अभी ये VB जी राम जी हो गई है. जी राम जी मीन्स अर्लियर ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंडर में ये 2005 में फॉर्म हुई थी. और अभी न्यू बिल जो हमारे पार्लियामेंट में आया था, तो ये स्कीम अभी MG नरेगा ने VB जी राम जी में कन्वर्ट हो चुकी है. तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट एंड फिगर था हमारा. ठीक है, सो लेट्स रिकनक्लूड द आर्टिकल्स. लेट्स ट्राई टू सम अप. सो इंसिडेंट फ्रॉम द तमिलनाडु, इट वाज द अमोनिया गैस लीक केस एंड फ्रॉम वेयर द लेबर्स वर included in this industry, in this unit. So these are from especially from the Odisha, but while different states like the Assam, Jharkhand, Kerala labor were also there. ठीक है, कितने रेड हुए? 7. और कितने थे टोटल, ये हमें अच्छे से याद रखना है. एंड व्हाट इज़ द टर्म मीनिंग माइग्रेशन ओवर ईयर. एंड की मेजर्स मैंने बताया कि गवर्नमेंट ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग इनको वॉच कर रही है. सर्वेलेंस, अंडर द सर्वेलेंस दी वर्कर्स आर दी डिजीज्ड, अपार्ट फ्रॉम द डिजीज दी पर्सन्स हु आर इंजर्ड टू, सो दे आर ऑल्सो अंडर द सर्वेलेंस. एक्स ग्रेशिया वी हैव बीन डिस्कस अबाउट. आर्टिकल 19 डिस्कस अबाउट. एंड आर्टिकल
article 21 is also with respect of right to life with dignity, so it's also important 19 and 21. और with respect of employment, तो ये लोग नौकरी करने के लिए गए थे ना, with respect of employment, so under article 14 is also. so यहाँ हमारे जो ट्रिपलेट आर्टिकल आ गए हैं 14, 19 एंड 21, जो कि फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एवरीबडी प्लीज़ डोंट माइंड माई राइटिंग ओवर हियर, कोर्स में बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी. ओके, वो तो एक्चुअली जस्ट थ्रू आउट द लेक्चर, so don't mind. Okay, and for more these kind of updates you can continue. Okay, so you can continue with my channel to watching the videos in which you will definitely get the thorough information regarding of the current affairs articles regarding the important topics which are running in our news. Okay, so for more update, stay tuned with me. Thank you.